chemo doctor. I used to Are do you like this. serious? Yes, and doctors and nurses used to laugh. Yeah, bhaiya, ये तो गजब की patient आई है. I just wanted to know about how was your journey as a Kathak dancer? Well, I started Kathak or the interest for the dance at the age of 4. I'm the only Kathak dancer in my family. My parents used to take us for shows, me and my sister for shows. And I told mom, this is what I want to do. So at the age of 6, I went into Kathak Kendra. आजकल के बच्चों के साथ ये है कि बच्चों को पकड़ के खींचते हुए पार्क में लेके ले जाना जाना पड़ता पड़ता है. यस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो बच्चा है उसके पैशन को समझना. अगर सचिन तेंदुलकर के फादर नहीं समझ रहे होते तो आज हमारे पास सचिन नहीं होता. अगर लता मंगेशकर जी के फादर मदर कहते कि नहीं पढ़ाई पढ़ाई करो तो आज हमारे पास लता मंगेशकर जी नहीं होते. है। आपको पता कब चला अपनी कैंसर के बारे में? हाउ डिड यू मैनेज? सबसे पहली बात है जब मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर है, आई डिडंट क्राई, आई डिड नॉट गो इनटू डिप्रेशन, सो आई टुक इट वेरी नॉर्मली. सबसे बड़ा था कि मैंने डांस किया. डांस आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी देता है. आप खुद पैशन का लाइक टू Are you पैशन serious? आपने डांस किया? Yes, I've danced with full ball at Kamani Auditorium, more than 700 audience. I did. I used to pull my cap and throw it and dance. And people used to be like, wow. मुझे लोगों से बहुत दुआएं मिली हैं. Hello, ladies and gentlemen. Welcome to Uncensored Ankit Kohli. Our guest for tonight is a presidential award holder for spreading Indian culture in Poland. She is also a Kathak dancer and a national award winner from Institute of Kathak Dance. She is also a presidential award holder uh, for spreading Indian culture in Poland. She is also a state icon for election in New Delhi. Please welcome Miss Alaknanda Das Gupta. Hello, ma'am. Hi, how are you? I'm fine, ma'am. Thank you. Okay. I just wanted to know about, and my viewer wanted to know about, how was your journey as a Kathak dancer? Well, I started Kathak or the interest for the dance at the age of 4. I'm the only Kathak dancer in my family. My parents used to take us for shows, me and my sister for shows. Every weekend, we were either at a flute show by Hari Prasad Chaurasia ji, or we were at a show of Ustad Zakir Hussain ji. And the same way, we landed up in a show of Pandit Birju Maharaj. And I told mom, this is what I want to do. So as my mom is, उन्होंने फटाफट जाके शो के बाद she went up and she talked to Pandit Birju Maharaj ji कि my daughter wants to learn Kathak, where should I put her? So then he said कि you take her to Kathak Kendra. So at the age of 6, I went into Kathak Kendra because that was the age allowed. And I took 14 years training at Kathak Kendra with scholarship from the third year onwards. And my gurus have been various because you pass through different gurus as you are getting trained. So my first guru was Srimati Reba Vidyarthi ji, then Bharti Gupta ji, then Guru Munna Lal Shukla. And I have done performances for Pandit Birju Maharaj ji and got trained because I used to be the little Krishna and Krishnayana, जो कालिया दमन में कालिया को मारती थी, and so that experience has been good. And I was in his Meera production, so there was a lot to learn. And it was nice because I was getting scholarship for my dance, so my interest for dance developed slowly. There's a lot of discipline needed. For that, I would credit it to my mother for all the discipline that she gave to me. And soon at the age of 18, I was given the national scholarship by the Ministry of Culture. And by 19, I was an empaneled artist of ICCR, that's the Indian Council for Cultural Relations. And that's how I started, the journey began. And I started teaching at Alaknanda Institute for Performing Arts at the age of 16. मतलब जहाँ पे मुझे डेटिंग करना चाहिए था, मूवीज जाना चाहिए था, आई वाज एक्चुअली टीचिंग चिल्ड्रन. So, love life को आपने compromise करके you made नहीं नहीं नहीं, dance as your love कॉम्प्रोमाइज नहीं किया मैंने कोई. आई हैड माय लिटिल शेयर ऑफ बॉयफ्रेंड्स, अच्छा. but dance always was a priority. What the first And priority? I realized that if I have a dream, I have to realize it, because society is not so supportive for any artist.
लाइक बचपन में जब डांस करती थी या रियाज करती थी तो मेरे पेरेंट्स को बहुत सुनने को मिला है कि अरे लड़का नहीं मिलेगा शादी के लिए, तो my mother and I started saying that I'm married to dance. So, and I honestly believe that I'm married to dance. And then when I was in my school, then the teachers were not supportive. Sorry to say that. So I had that vision that I have to prove that artists have a beautiful life, which is very difficult in our country. But yes, artists have a beautiful life. Struggles her life may have, but yeah. Falling in love is normal thing. It's nothing very unusual. But yes, I was more in love with dance and life. डांस के बारे में आपके पेरेंट्स को जब पता चला जी. पहली बार कि कथक डांस में आप जा रहे हैं, हाउ वर देयर रिएक्शन? मतलब I'm very blessed that I'm born to my set of parents. My mother, Dr. H. Dasgupta, Hiron Dasgupta, she was a professor in Delhi University. She is a doctorate in management. My father is a very famous music director, Gautam Dasgupta ji. And one thing good about my parents was that they were open to career options. They were open to passion. उनको ये नहीं था कि बैठ के टीवी देखो या आजकल का टाइम जो है मोबाइल में जाता है. They were like कि spend time in something creative and valuable. So I think I got the best set of parents, and they have invested a lot. A career in dance or music or any career, even if you want to become a doctor, there's a lot of investment. So my parents invested a lot in me for becoming a dancer. रिस्पेक्ट तो मैम करना चाहिए, मतलब क्योंकि मेरे को लगता है कि अगर आपके बच्चा कुछ भी करना चाह रहा है, बिल्कुल, तो अगर वो उसको आप बूस्ट नहीं करोगे, जैसे मेरा बेटा है वो 6 साल का है एंड एट दिस एज ही वांट्स टू बी अ गेमर. हालांकि ये एज नहीं है गेमर बनने की, बट स्टिल वी थिंक कि हाँ चलो आधा घंटा पौना घंटा उसे एक दिन में टाइम टेबल के हिसाब से वो गेमिंग करने के लिए दे देते हैं. क्योंकि हमारे टाइम पे क्या होता था मैम, घर वाले पार्क से हमें खींचते हुए लेकर आते थे. राइट. आजकल के बच्चों के साथ ये है कि बच्चों को पकड़ के खींचते हुए पार्क में लेके जाना पड़ता है. यस. तो हमने क्या कर रखा है, उसको क्रिकेट कोचिंग में भी डाल रखा है. स्कूल से आता है, उसके बाद वो खाना वाना खाता है, थोड़ा होमवर्क वगैरह करता है, उसके बाद क्रिकेट कोचिंग जाता है. क्रिकेट कोचिंग से आता है फिर वो स्विमिंग क्लास जाता है. तो उसके बाद वो डिनर करता है और इतना थक जाता है कि वो सो जाता है. राइट. तो बीच में आधा घंटा 1 घंटा खाने के वो ही वांट्स टू डू गेमिंग. सो GTA वगैरह ये सब गेमिंग. 6 साल का बच्चा. सो ही इज डूइंग दिस काइंड ऑफ शेड्यूल. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू रियलाइज कि जो बच्चा है उसके पैशन को समझना. अगर सचिन तेंदुलकर के फादर नहीं समझ रहे होते तो आज हमारे पास सचिन नहीं होता. अगर लता मंगेशकर जी के फादर मदर कहता कि नहीं पढ़ाई करो तो आज हमारे पास लता मंगेशकर जी नहीं होते. सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स ये जरूर ध्यान दे कि सिर्फ academic is not important. There are other professions also which are very important and your child can shine in that. तो बहुत जरूरी है कि अपने सपनों को ना बच्चों पे ना थोपे, उनके सपनों को उड़ान दे. I think that's important. हालांकि हम ऐसे स्कूल से हम दोनों पढ़े हुए हैं, सेम स्कूल से हैं. Yeah, Somerville. हम दोनों. Yeah, we are from Somerville. जहाँ पे मोस्टली 90% एकेडमिक पे ध्यान Yeah, I दिया had a जाता very है. tough time. Yeah. I had a very tough time. जो I had सुन to भी रहे really हैं fight. टीचर्स, हम दे आल्सो नो कि स्कूल में एकेडमिक पे ज्यादा ध्यान देते हैं वो Yeah. लोग. दैट इज गुड. जितने भी नोएडा के टॉपर्स होते हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम समरविल. Yeah. बट टॉपर्स होते हैं ना, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या? You know, ये बात सही है marks मैम. is just a number, and number doesn't make you happy. Yes, You know, ये so बात it is सही है. very important कि नंबर पे जोर ना दे, खुशी पे जोर दे. अब मुझे अगर नंबर खुश करेगा, then why are people also crying in a Mercedes? मैम मेरे हिसाब से ना 90% से ऊपर Yeah. जिन बच्चों की परसेंटेज आई है ना, हाँ. वो तो बेकार है. ठीक है, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में पढ़ाई के अलावा कुछ देखा ही नहीं है. Yeah. और जो 60 to 85 87 वाले बच्चे हैं, दोज हैव, उन्होंने पढ़ाई भी करी है, उन्होंने गेम्स भी करे हैं, उन्होंने बकचोदी भी करी है, उन्होंने जिंदगी में सब कुछ करा है. हाँ, पिक्चर भी देखी है. दे आर डूइंग वेल इन लाइफ. दे आर जैक ऑफ ऑल कह सकते हो आप. And you know
what I feel, ये जो 90% के पीछे रेस भागती है ना, it's a rat race. हम्म And I've seen because of that children are in depression. Children become very selfish. Children become fighter cocks. I think please don't make them race after somebody. Give them the value of life, not just the money of life, but value कि हर छोटी चीजों को enjoy करे, रिश्तों को enjoy करे, दोस्ती को enjoy करे, अपने पैशन को enjoy करे. That is very important. आज का जो दोस्तों हमारा ये पॉडकास्ट है, ये स्पेशल इसलिए भी है बिकॉज मैम इज़ अ कैंसर सर्वाइवर। तो आज हम मैम से कुछ ऐसे क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं जो बहुत सारी लेडीज़ के लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे कैंसर सर्वाइवर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे इसमें कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें कि और भी ऐसे अलर्ट्स आते रहें आपको हमारे शो से रिलेटेड। तो मैम मेरा क्वेश्चन ये है, नाउ लेट्स गेट सीरियस अबाउट इट, कि आपको पता कब चला अपनी कैंसर के बारे में, एंड हाउ डिड यू मैनेज? You know what? We have to realize that our body is a machine and it goes through changes. So, especially the women, they go through hormonal changes. So, the same way I was having my periods and everything, and suddenly I witnessed that I was spotting for 10-15 days, even after 5-6 days of periods. And I thought this was something very unnatural. जब भी आपके body में changes हो, you should become very alert. And I rushed to the doctor. So the doctor said गायनाक के पास मैं गई अपने ही कैलाश हॉस्पिटल नोएडा में. Then उन्होंने कहा कि please get a ultrasound done. So when I got the ultrasound done, so my doctor over there said, Alexandra, let's get a CT scan done. When the CT scan was done, then we realized that it was a lump on my ovary. तो तब तक उतना पता नहीं चला था कि क्या प्रॉब्लम है. After I think 1 month of बायोप्सी more रिपोर्ट? Reiki. Yeah, बायोप्सी no, रिपोर्ट? no, no. I had the first surgery. अच्छा, I took the first surgery after a month and laser karvaya tha. So the doctor was not happy after the surgery. She said to my friends Gauri Divakar and Rashmi Bhatia, my sister Prajita, ki there's some problem. This lump is not normal. So I had an ovarian cancer, and after biopsy, pata chala ki I have the first stage cancer. Then I had to go for a second surgery, and it was a full cut surgery after 2 months. And then I had to go for 6 months of six chemotherapies, जिसके बीच में मैंने गंजेपन में 15 shows किए बड़े शौक से. एंड आई एम अ स्टेट आइकन फॉर द इलेक्शन कमीशन. तो उस टाइम हमारा टाइम था फॉर टू चेंज or to motivate the citizens to become voters. So that was one of my major mission कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूं. 15 अगस्त आ रहा है एंड जय हिंद, भारत महान. एंड तब मेरे को था कि अब मुझे नाचना है. और मेरे जो मेंटोर हैं डॉक्टर रणवीर सिंह जी ने कहा, विल यू डांस मैम? आई सेड यस, आई विल डांस. विद योर कीमोथेरेपी एंड योर बॉल्डनेस, आई सेड यस, मैं डांस करूंगी. एंड आई डिड सम 15 shows during my 6 chemotherapies. जब आपको पहली बार पता चला या आपके बाल जब जा रहे थे, हाउ वाज योर रिएक्शन? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो डिप्रेशन में चले जाते हैं कि मेरे बाल चले जाएंगे. लेडीज लव देयर हेयर सो मच कि अगर नाई के पास जाएं और जरा सा आधा इंच भी ज्यादा कट गया तो वो परेशान हो जाती है. तो और फिर आपके, मेरे को लगता है कि आईज वगैरह से भी बाल गए होंगे. हाँ बिल्कुल, आईब्रोज नहीं थे मेरे. आईब्रोज वगैरह सब चला जाता है. एंड देन उसके बाद आपने कैसे उसको ओवरकम करा, कैसे कॉन्फिडेंस आया? क्योंकि कैंसर का पता चलने के बाद सिर्फ एक घर पे ये भी देखा जाता है कि सिर्फ जो कैंसर का पेशेंट है उसको नहीं प्रॉब्लम आती, इवन उसके आसपास के लोग जो कुआं है वो भी सफर करता है. क्योंकि वो घर वाले भी ये सोचते हैं आज की डेट में कैंसर वैसे तो खांसी जुकाम की तरह बीमारी हो गई है. यू हैव टेकन दैट काइंड ऑफ फीलिंग्स इनसाइड यू. तो अपने जीन्स को कैसे खुश रखना होता है, इस चीज के बारे में मैम प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताओ. सबसे पहली बात है, जब मुझे पता चला कि मेरे को कैंसर है, आई डिडंट क्राई, आई डिड नॉट गो इनटू डिप्रेशन. आई टुक इट एज नॉर्मली एज अ वायरल फीवर. आप जिस चीज को तवज्जो दोगे
वही चीज आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो मैंने कैंसर को तवज्जो ही नहीं दिया। मैंने कहा ठीक है, डॉक्टर्स आर देयर, दे विल टेक केयर, मुझे जो करने को बोलेंगे मैं करूंगी। सो आई टुक इट वेरी नॉर्मली। माई यंगर सन वॉज गिविंग 10, तो मैंने बहुत घर पे माहौल बहुत ही नॉर्मल रखा। मैंने ऐसा कुछ जाहिर होने ही नहीं दिया कि मेरे को बहुत बड़ा कुछ हुआ है। डेफिनेटली माई पेरेंट्स वर वेरी वरीड, वो रो भी रहे थे, पर somehow I was very strong. I had faith in my spiritual guru. अगर आप पॉजिटिवली चलोगे तो आपको, आप हर समुद्र पार कर सकते हैं। एवरी स्ट्रगल यू कैन ग्लाइड थ्रू। So every time I went to the doctor, I did my medications. My friends were strong behind me. My sons, both of them stood very strongly. मैंने बहुत normally behave किया। मैंने बहुत पॉजिटिवली दिया। सबसे बड़ा था कि मैंने डांस किया। डांस आपको बहुत पॉजिटिव एनर्जी दे, आप कुछ पैशन उठा। आई टुक पैशन आर ऑफ यू लाइक सीरियस, आपने गान। डांस किया? यस यस, आई हैव डांस्ड। मैम आप कैसे आप खड़े? वीडियोस में, आपको वीडियोस भेजूंगी। व्हेन डेफिनेटली, आई हैव डन डांस, आई हम डन डालेंगे महाराज मैम। 2 with full ball at Kamani Auditorium, more than 700 audience sitting during my the state icon shows. I did. I used to pull my cap and throw it and dance. ऐसा वीडियो है? Yes, hai video hai. And people दैट्स used to नाइस। be like, wow, मुझे लोगों से बहुत दुआएं मिली हैं। I've got यू आर lot of, परफॉर्मर? yeah, it's like craziness, madness. So I believe artists थोड़े से mad होते हैं। नहीं, So सही में। I have done all those craziness और मैंने इसको बहुत normal लिया। मुझे लगता यू है मेड इट जब योर जागो स्ट्रेंथ। वही सवेरा। यू मेड इट योर स्ट्रेंथ। Yes, I made it my strength. मुझे लगता है आज का दिन मिला है। I'm going to enjoy today. I'm going to enjoy my life. I don't know what's going to happen tomorrow. कल हो ना हो, आज है ना। आज मुझे जिंदगी मिली है, आज इसको सेलिब्रेट करूंगी। इसलिए आज मैं यहाँ पे भी हूँ आपके साथ। मैम इज वेरी एनर्जेटिक गाइस। बहुत ही एनर्जेटिक हुआ आप मैम। और Yes. आई थिंक जो कैंसर के पेशेंट्स को जब पता चलता है, जब वो घर का माहौल बनता है मैम, तो आपके घर का भी ऐसा ही कुछ माहौल होगा, कुछ उसके मैंने बारे में होने ही नहीं बताइए। दिया। मैंने होने ही नहीं दिया। जब मैं कीमोथेरेपी में जाती थी ना, हाँ। मैक्स साकेत के हाँ उसमें, जी। लाजपत में, तो वहां पे 10 कैबिन्स हैं। अच्छा। सो मेरा एक कैबिन होता था। हाँ जी। तो वो तो मैं सारा टाइम, एक तो डॉक्टर जब भी आते तो मैं कह, कम डॉक्टर, कम डॉक्टर, कीमो डॉक्टर, कीमो डॉक्टर। आई यूज्ड टू आर डू यू लाइक दिस। सीरियस? यस। एंड डॉक्टर्स एंड नर्सेस यूज्ड टू लाफ, या भैया ये तो गजब की पेशेंट आई है। और बाकी 9 जो केबिन होते थे वो ऐसे ही सड़ेले, ऐसे, मतलब जिंदगी गई। अरे जिंदगी तब जाएगी ना जब तुम मानोगे कि जिंदगी गई हो। और मैं अपने केबिन में रील्स बना रही हूँ और दिखा रही हूँ, अरे यहाँ पे कीमो चल रहा है, और मैं रील्स बना रही हूँ, फ्रेंड को भी ले रही हूँ, मेरे बेटे को भी ले रही हूँ, चल चल रील्स बनाते हैं। आप जैसे, और आज कीमो लिया, कल मेरा शो, कल कीमो लिया, उससे पहले एक दिन शो। सो आई जस्ट लिव्ड इट। आई जस्ट लिव्ड इट। कैंसर वैसे तो एक हवा है, और आप कैसे कैंसर उस हवे को आपने खा लिया। हाँ, लोग कहते हैं आपने तो कैंसर को भी डरा दिया। हाँ, एक्चुअल में मैम, मतलब मेरे, आई डोंट हैव वर्ड्स। माय फादर वाज आल्सो सफरिंग फ्रॉम कैंसर 2013 में। ही वाज एडमिटेड इन एम्स। और मैम मुझे पता है कि मेरे घर का माहौल क्या था, क्योंकि उससे 6 महीने पहले आई लॉस्ट माय मॉम। सो आफ्टर 6 months आई गेट टू नो दैट माय फादर इज इन माउथ कैंसर। और डॉक्टर ने ये बोल दिया, मेरे को डरा दिया लोगों ने कि ये तो बचेंगे नहीं, तुम क्या करोगे। एंड मैं कॉलेज से जस्ट निकला ही था 24 ईयर्स की एज में। आई डन माई मास कम्युनिकेशन फ्रॉम एशियन स्कूल ऑफ मीडिया स्टडीज। तो मैम मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था जिंदगी में कि मैं क्या करूं उस समय, बिकॉज आई वॉज नॉट दैट ट्रेन टू लिव लाइफ। तो जो सर पे पड़ी मेरे, उससे काफी कुछ सीखने को तो मिला। फादर गॉट एडमिटेड इन हॉस्पिटल। मैम मैंने 30 days एम्स के अंदर फादर के साथ बिताए हैं, जो वहाँ पे ट्रीटमेंट उनका चला है अराउंड। और उनको नाक से दूध पिलाता था, मतलब वो क्योंकि कुछ खा नहीं सकते थे, Yes. माउथ में वो कट्स वगैरह लगे हुए थे। तो एक वो पाइप सा लगा हुआ था, उसमें एक वो ढक्कन सा लगा होता था, उसमें मिल्क डालना होता था। उन्होंने 30 days तक कुछ नहीं खाया, कुछ नहीं वो करा, और सिर्फ वो मिल्क उनकी बॉडी में गया।
सो It's very आई नो painful. एवरी डे मेरे मैं रोता था, छुप छुप के रोता था। मुझे याद है कि मैम कि बस मेरे को ये लगता था मेरे पापा को किसी भी तरीके से बचा लो, क्योंकि मुझे काफी लोगों ने भी डराया है। और मैम मैं आज खुले में बोलना चाहूंगा, मेरे फैमिली के भी कुछ लोगों ने मेरे को आके इस तरीके से टेम किया, डिमोरलाइज किया, विच इज नॉट इम्पोर्टेंट। Yeah, हम लोगों को ऐसे दिखाया गया कि तुम लोग जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते हो, फादर के बाद तुम लोग कुछ नहीं हो। right. आज की डेट में आई हैव गिवन अ स्लैप ऑन देयर फेस। फ्रैंकली Absolutely. स्पीकिंग, मैंने आई हैव टेकन केयर ऑफ माय फैमिली, आई हैव गॉट मैरिड, आई हैव गॉट किड्स। मैं और मेरे फादर ने इस घर को उस समय से आज तक 10x पहुंचा दिया है, एंड विदाउट एनी हेल्प बाय फ्रॉम एनी वन एल्स। एक्चुअली ना, आपको आप जितनी दुनिया की सुनोगे तो आप डूबोगे। आपको अपनी सुननी चाहिए, अपनी सोल की, अपनी स्पिरिट की, वो सुननी चाहिए। एंड पॉजिटिव एटीट्यूड रखना बहुत जरूरी है। मैं 3 P's पे आजकल कॉन्सेंट्रेट करती हूँ, और जहाँ पे भी मैं बात करती हूँ, ऐसे ऑलवेज remember 3 P's. One is prioritize yourself, especially ladies. Please prioritize yourselves. Go for your medical checkup after 30s. Every 6 months go for your medical checkup, whole body checkup कीजिए। हमारी प्रॉब्लम है इंडिया में, हम औरतें अपने को कतार में लास्ट खड़ा करते हैं। पहले बच्चे, फिर माँ बाप, फिर पति, फिर समाज, फिर ये अपनी जो एक्सटेंडेड फैमिली होती है, वो अपने पे कोई हम प्रायोरिटाइज ही नहीं करते। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रायोरिटाइज योरसेल्फ, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो आप अपने फैमिली को भी स्वस्थ रख सकते हैं। सेकेंडली, गेट अ पैशन। ओके, यू आर रनिंग आफ्टर अ रैट रेस, आपको अर्न करना है, बट उसके साथ अपना पैशन भी रखिए, बिकॉज पैशन विल गिव यू हैप्पीनेस। एंड थर्ड है पेमेंट ऑफ योर मेडिकल इंश्योरेंस। Please take up a medical insurance. Please pay your premiums on time, because yes, if you want to go to a good hospital, you should have good insured money. These 3 P's are very important in life. मैम हेल्थ का ख्याल रखना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कोविड ने भी ये लोगों को सिखा दिया है Yes, very much. कि हेल्थ इज वेल्थ। क्योंकि Yes, बहुत सारे लोग ने, सभी नहीं एक्चुअली, अपने परिवार में किसी न किसी को खोया है। खोया है, किसी न किसी तरीके से। क्लोजेस्ट पर्सन या जिंदगी में हमारे आसपास से निकला हो वो, या हम सब ने किसी न किसी को खोया है। तो कोविड ने लोगों को कम से कम ये सिखा दिया, और हॉस्पिटल्स को का काम चला दिया। इट वाज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज फॉर बट देम। आई थिंक मेरे को बहुत अच्छे डॉक्टर्स मिले, डॉक्टर कनिका बत्रा मोदी हाँ जी। एंड डॉक्टर जुल्का, डॉक्टर मीनाक्षी आहूजा। आई गॉट वेरी गुड सेट ऑफ डॉक्टर्स। सो ये भी आपको चूज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक गॉड मेरे फ्रेंड्स ने चूज किया, एंड आई गॉट द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर्स। सो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। फिर खर्चा कम होता है। नहीं, लेकिन मैम सरकारी हॉस्पिटल में डिड यू गेट गो टू? नो नो, आई वेंट टू मैक्स साकेत। क्योंकि हर इंसान ये भी सोचता है कि कैंसर एक बीमारी है, और कोई सस्ती बीमारी नहीं है, बहुत ही महंगी Exactly, it's बीमारी है। very. That's why I said ना, pay your insurance premiums. इंश्योरेंस मैम, आप इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर रहे हैं। हमारे देश में ऐसी जनता है जिनके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं Exactly, है I understand that, Goli. I understand that मैम। तो very much. उसके लिए मैम हम सब क्या We करते need हैं? to educate ourselves. We need to. हेल्थ के लिए एजुकेट करना जरूरी है। बहुत जरूरी है। Smoking मत करो ना। Have a healthy life. But you know, Kohli, the problem is, I have a very healthy lifestyle. But किसको होगा? Because it could be genetic, it could be a hormonal, it is a lot of corruption, pollution is there. It could be anything. So you don't know why cancer is going to. There's still no answer to it. कि cancer होता क्यों चाय है? पीने से होता है, हाँ, सिगरेट पीने इसको से किस होता है, वजह से दारू हो पीने रहा है? Nobody knows. Right. You know. So it is very important that you are aware of your body and of your changes of your body. And definitely, as you said, I agree to it. लोग डॉक्टर के पास ही नहीं पहुंच पाते, या मेडिकेशन ही नहीं ले पाते, because it's expensive. So it's very important that you learn to money manage yourself. मैम ऐसे कोई ऑर्गेनाइजेशंस हैं या ऐसा कोई Yeah, there are रास्ते हैं? many. They are helping cancer patients. There's Bliss.
there's a Max की अपनी एक organization है, अच्छा, those are helping cancer patients. पुअर पीपल, हाँ, कैंसर yeah, पेशेंट्स also yes, जो पैसे medication. नहीं दे सकते हैं। Exactly. और मैम, हाउ पेनफुल इट वाज फॉर यू व्हेन यू वर गोइंग थ्रू That इट? cannot be explained because that there's a physical pain, there's a mental pain, there's an emotional pain, there's a psychological pain. You have to combat all of them. मतलब एक तो फिजिकली जब आप ऑपरेट होते हैं तो ना आप इधर मुड़ पा रहे हो, ना आप उधर मुड़ पा रहे हो, ना आप सही वॉक कर पा रहे हो, वो पेन अलग है, इम्यूनिटी वीक होती है। बहुत वीक होती है। और आपका, मेरा तो कट हुआ है पूरा हम्म। फ्रॉम द नेवल टू डाउन, तो सिजेरियन में तो इट्स लाइक क्रेजी। सो बहुत ही फिजिकल पेनफुल अलग है, मेडिकल पेन्स अलग होती हैं क्योंकि अंदर जो भी आपके टाके लगे या क्लीन अप हुआ है, सो दैट पेन इज सेपरेट। मेंटली आप उसमें रहते हैं कि अच्छा बच्चा स्कूल जाएगा, अभी ये बिल भरना, अभी वो बिल भरना है। बीइंग अ सिंगल पेरेंट, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मेरे ऊपर हैं, जबकि इमोशनली माई पेरेंट्स आर वेरी मच अटैच टू माई चिल्ड्रन एंड देव टेकन वेरी गुड केयर ऑफ माई सन्स। But then, being a woman of dignity and pride, I like to pay all my bills, and I would like my life to be dependent on myself, nobody else. Then psychologically, you always think, okay, if something happens to me, कि मेरे बच्चे कैसे करेंगे, सो यू हैव टू ग्रूम योरसेल्फ कि कुछ नहीं होगा, मेरे को कुछ नहीं होगा। यू हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। मैं एक बार ही रोई थी बस, ऋचा अनिरुद्ध जी के घर पे गणपति उत्सव था, और मैं उस दिन बहुत रोई, बहुत रोई। नहीं तो मैं पूरे जर्नी में 2 साल में नहीं रोई थी। मुझे भगवान से एक ही था कि मुझे क्यों कैंसर दिया। तो जेनेटिक था जब मैम आप ये आपके फादर एंड मदर? बिकॉज ये मैंने सुना है जेनेटिकली, पर अभी तो कि हमारे फादर फैमिली और में भी, मदर जो होते हैं कहीं हाँ भी जेनेटिकली हमारी अगर जीन्स में आ रहा है हाँ, तो। बट अभी उनका तो कोई प्रूव ही नहीं हुआ ना। पहली कैंसर पेशेंट तो मैं हूँ, मेरे ग्रैंड मदर को लिवर सिरोसिस था, बट अच्छा, कैंसर तो आई एम दी वन। सो ओके। आई वाज क्राइंग दैट डे, देन आई गॉट माय आंसर। सो मुझे ऐसे आंसर मिला कि तुम्हें नहीं तो किसको, तुम्हारे पेरेंट्स को नहीं भाई, तुम्हारे बच्चों को नहीं, तुम्हारे फ्रेंड्स को नहीं, तुम्हारे और किसी को, दुनिया में एक जना दिखा दो जिसको मैं कैंसर तुम्हारी जगह पे। सो आई हैड नो आंसर, सर नो। सो आई रियलाइज दैट मे बी आई हैड द स्ट्रेंथ टू फाइट कैंसर एंड बिकम अ स्पोक्स पर्सन कि कैंसर इज नॉट अ डेथ ट्रैप। इफ यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, you can live a healthier life after cancer. So you got educated by cancer. Yeah, I got stronger by cancer. ऐसे भी बताओ, इंडिया में औरत होने के लिए बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। बिल्कुल मैम, इंडिया में आपको सिंगल पेरेंट होने के लिए बहुत स्ट्रांग होना ये बात पड़ता है, आपने एकदम सही आपको बोली है। आर्टिस्ट होने के लिए बहुत स्ट्रांग होना होता है। देन कैंसर ने मुझे और भी स्ट्रांगर बना दिया। इट मेड मी अ मोर स्ट्रांगर पर्सन, द विल टू लिव एंड लिव हैप्पीली। वैसे तो मैम मैं फेमिनिस्ट नहीं हूँ, लेकिन क्या है मैं भी जो, नहीं हूँ, आई हाँ लव मैन। हाँ, लेकिन मैम कोहली, ये आप नहीं लेडीज बोल के सकते। अंदर एक आदत होती है। हाँ हम अगर आदमी लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हैं ना मैम, हाँ तो 4-5 घंटे में अगर कहीं ट्रैवल कर रहे हैं तो 2-3 बार टॉयलेट करने के लिए उतरेंगे, हाँ, क्योंकि आपका यूट्रस कैंसर है, इसलिए मैं यस इस बारे में बात कर रहा हूँ। लेकिन लेडीज के साथ क्या होता है, व्हेन दे आर ट्रैवलिंग, 5 घंटे क्या 6 घंटे भी अगर वो ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो वो यूरिन को रोक लेते हैं, या व्हिच इज नॉट अ क्योंकि गुड थिंग। विच इज नॉट अ गुड थिंग, बट टेक्निकली क्योंकि वो इसी चीज से डरते हैं पर इसी चीज से कि डरते हैं हाइजीन, ना, क्योंकि हाइजीन इंडिया में अच्छी टॉयलेट्स नहीं है, नहीं थैंक्स है। टू आवर पीएम मोदी, कि अब हम्म, ये पिंक टॉयलेट्स हुई ये हैं एंड देयर प्रॉब्लम। सो मेनी टॉयलेट्स व्हिच आर क्लीन। मैं तो, क्योंकि मैं स्वच्छ भारत अभियान की भी पार्ट हूँ, एज अच्छा, अ ब्रांड एम्बेसडर फॉर एमसीडी, मैं तो जाके चेक करती हूँ टॉयलेट्स। नाइस। मैं कहीं पे भी होता है, मैं जाके चेक करती हूँ कि साफ है या नहीं है। मुझे जाना नहीं होता, बट आई डू दी चेकिंग, एंड अगर साफ होता है तो आई समटाइम्स बाय अ बंच ऑफ बनानास एंड गिव इट टू द क्लीनर। दैट्स I नाइस, buy apples and give it to the cleaner दैट्स नाइस। because it is important. So thanks to our Prime Minister PM Modi ji मैम कि ये ये चीज ना pink नोएडा में toilets। है, हाँ, आई सीन इन नोएडा। हम्म, बट अगर हम नोएडा से बाहर निकलते हैं, हम्म, कहीं दिल्ली की तरफ जाते हैं, तो सेम प्रॉब्लम्स आ रही हैं अभी yes। भी। देखो, एमसीडी हर वगैरह में चीज है हम प्रॉब्लम। सरकार पे नहीं दे सकते, कुछ चीजें हमें अपने हाथ पे भी लेनी होती है। जैसे सफाई अपने घर के सामने रखना, अपनी गली में। लोग बहुत, अभी भी मैं देखती हूँ गाड़ी से पैकेट निकाल के फेंक दिया, क्यों? गाड़ी में क्यों नहीं रख सकते आप उस पैकेट को?
आप घर में जाके डस्टबिन में डालें। हम बाहर जाके बात करें, वो कितना साफ देश है, कितना साफ देश है। हमारे देश में गंदा कौन करता है? हम करते हैं। जमादार वो नहीं, कूड़े स्वीपर वो नहीं, कूड़े वाला वो नहीं, कूड़े वाले हम हैं। हाँ, so we can keep our country clean also. We can also वो तो arrange साफ कर रहा है toilets. कूड़ा, वो थोड़ी कूड़े वाला हुआ। Exactly. कूड़े वाले तो हम हुए। You should keep your country clean. और वैसे ही टॉयलेट्स के लिए भी यही है लेडीज को, क्योंकि यूटीआई प्रॉब्लम्स बहुत जल्दी हो जाती है, सो दे डोंट वांट टू गो आउटसाइड। इफ दे आर टॉयलेट्स, प्रॉपर टॉयलेट्स आउटसाइड, इट्स इजी फॉर द लेडीज। सो कथा कहे सो कथक कहलावे। सो मेरा बिलीफ है कि ऐसे तो हम लोग, जो हमारी परंपरा है उसमें हम कृष्ण की कथाएं बोलते हैं, राम की कथाएं बोलते हैं, देवी देवताओं की कथाएं बोलते हैं, पर मुझे लगता है कि मुझे कथक इस मीडियम से मिला है कि मैं अपनी जर्नी के बारे में बोलूं, समाज में जो प्रॉब्लम्स है उस जर्नी के बारे में बोलूं, जो हमारी त्रुटियां हैं उनको अगर हम खत्म करना चाहते हैं, वो हम कथक के थ्रू बोले। सो कथक इज अ मीडियम, और डांस इज अ मीडियम टू मोबिलाइज योर माइंड। डांस इज अ मीडियम विच इज अ कैटलिस्ट फॉर द सोसाइटी, टू चेंज द सोसाइटी। सिर्फ माइथोलॉजिकल कथाएं कहने के लिए नहीं है, ये कथा वो है जो हमारी जिंदगी को सुधार सकती है और बेहतर बना सकती है। सो डांस इज अ मीडियम टू चेंज द वर्ल्ड, टू चेंज द माइंडसेट, टू चेंज द विजन ऑफ द पीपल। दोस्तों इसी के साथ ही हम ये भी बताना चाहेंगे आपको कि अगर आपको मैम को इनवाइट करना है या मैम को अपने घर पे शो में बुलाना है, तो मैम का एक एकेडमी है जो मैम रन करती हैं। मैम कुछ एकेडमी के बारे में बताइए। अलकनंदा इंस्टीट्यूट फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स नोएडा, नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में है। जो मेन सेंटर है वो पिछले 34 ईयर्स से चल रहा है। इट्स अफिलिएटेड टू गंधर्व यूनिवर्सिटी। वी आर इनटू प्रोफेशनल ट्रेनिंग, पर अटेंडेंस देना बहुत जरूरी है। बिना अटेंडेंस के आप कोई भी ट्रेनिंग नहीं ले सकते हैं। 7 ईयर्स का ग्रेजुएशन कोर्स होता है फ्रॉम द गंधर्व यूनिवर्सिटी, जिससे आपको कॉलेज वगैरह में अच्छी एडमिशन मिलते हैं, कोटा मिलता है। Even in international universities, those certificates help you to get a percentage of your progress, and you can also become a professional dancer or a teacher where you can earn good money. And dance is a passion, and it's a beautiful sense of spiritual movement. So anytime you want to come and learn, you can contact me. Ma'am has a team of beautiful girls dancing beauties, all the peacocks. तो अगर आपको उन पीकॉक्स को भी इनवाइट करना है अपने शो पे, तो आप हमारे नीचे चैनल दिए गए लिंक के ऊपर या चैनल पे हमारे कमेंट करें, एंड वी विल गेट बैक टू यू, मैम विल गेट बैक टू यू एंड फॉर योर बुकिंग्स। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉन्टैक्ट अस। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें दोस्तों, लाइक करें। हम ऐसे ही बहुत सारी कहानियाँ लाएंगे आपके पास, और दिलचस्प कहानियाँ होंगी। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज़ कॉल। Thank you.